We are going to start Unit 10, Simple Harmonic Motion and Waves. Simple harmonic motion is a type of vibratory motion. Vibratory motion we have discussed in detail in Unit 2, Class 9. The to and fro motion about a mean position is called vibratory motion. It means simple harmonic motion में भी हम to and fro motion को ही डिस्कस करेंगे about mean position. वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें. A special kind of vibratory or oscillatory motion is called the simple harmonic motion. Vibratory motion, oscillatory motion, and simple harmonic motion are the same thing, in which the body will move to and fro about its mean position. The motion of, we will discuss simple harmonic motion. There are 3 examples discussed in this unit about simple harmonic motion. The motion of mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface. एक mass attach है spring के साथ, जैसे आपको एक फिगर में नज़र आ रहा है. mass एक attach है spring के साथ और ये एक horizontal frictionless surface पे पड़ा हुआ है. Frictionless surface means there is no friction between mass and this surface. इस mass की जो movement होगी इस frictionless surface पे, that is the example of simple harmonic motion. The motion of ball placed in a bowl and the motion of a bob attached to a spring are examples of simple harmonic motion. Second example is ball placed in a bowl and the motion of a bob attached to a string, which is also called as simple pendulum. This is an example of ball placed in a bowl. एक ball है जो एक bowl में हम place करेंगे. अगर हम इसको move कराएं, एक extreme position पे लेके जाएं, तो ये to and fro about mean position के move करना शुरू कर देगी. This is example of simple harmonic motion. And this is example of mass attached to a string or a bob attached to a string. Simple pendulum की example है कि ये एक string है जिसके साथ एक mass attach किया हुआ है. अगर हम इसको disturb कराएं इसकी mean position से, किसी भी एक side पे लेके जाएं और वहाँ से उसको release कर दें, तो ये bob जो है ये to and fro about this mean position move करना शुरू कर देगी. These are the 3 examples which we will discuss in detail in this topic of simple harmonic motion. We are going to discuss first example. ये आपका जो टॉपिक है इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और MCQs हैं. लॉन्ग क्वेश्चन में इससे पहले नहीं आया, लेकिन इसकी हर दूसरी तीसरी लाइन में कॉन्सेप्चुअल लाइंस हैं, इसलिए आपको अटेंटिव होके बैठना है, एक एक चीज़ इसकी समझनी है. और जहाँ पे समझ नहीं आएगी यू कैन रेज योर हैंड, आई विल क्लियर दैट पॉइंट एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. One of the simplest type of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system. इसी mass spring system को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जो oscillatory motion या vibratory motion या simple harmonic motion की example है. ये एक mass है जो अटैच किया हुआ है एक spring के साथ. अगर हम और ये प्लेस किया हुआ है हमने एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और ये स्प्रिंग अटैच हुआ है इस वॉल के साथ. अभी ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है. ये स्प्रिंग, इसके ऊपर कोई फोर्स अभी एग्जर्ट नहीं हो रही. एक नॉर्मल पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे ये मैस पड़ा हुआ है. अगर हम इस मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, इस मैस को डिस्प्लेस कराएं, राइट साइड पे लेके जाएं, इसका मतलब ये है कि ये मैस कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके यहाँ इस डॉटेड लाइन तक आ जाएगा.
We applied a force to the right on this mass. The mass is displaced from mean position to this dotted line called as the extreme position. अब जब हमने इस mass को डिस्प्लेस कराया इस पोजीशन तक, तो ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच हुआ है। ये इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स है। जब भी आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो उसके अंदर एक फोर्स स्टोर होती है, उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग वापस अपनी साइड पे उस ऑब्जेक्ट को खींचेगा। ये एफ यहाँ पे एरो से शो किया हुआ है लेफ्ट साइड पे, दिस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे लाके हमने इस मैस को रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है। अब ये मैस मूव करेगा राइट साइड पे ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग। ये मैस मूव करेगा, इस मेन पोजीशन पे पहुंचेगा पहले, और बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उसने मोशन स्टार्ट कर दी है एंड द surface is frictionless, this mass will move to the left side up to this dotted line called as second extreme position. So there are two extreme positions. एक extreme position है जहाँ तक हम mass को लेके आए हैं और वहाँ से लाके रिलीज किया है, उसको छोड़ दिया है। Because of the restoring force in the spring, the mass will move to the left. mass left side पे move करना start करेगा और अब मेन पोजीशन से पास करता हुआ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये एक और लेफ्ट साइड पे पोजीशन तक पहुंच जाएगा और यहाँ पे आके ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। जैसे हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था तो उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हुई थी, जो उसकी अपनी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको हम कहते हैं। ऐसे ही जब स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज ऑल्सो द रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये कंप्रेस हुआ हुआ स्प्रिंग वापस इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट या मैस मूव करता हुआ इस मेन पोजीशन पे आएगा और इनर्शिया की वजह से अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। फिर इस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, ये वापस इसको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जो है वो खींचेगा और ये मूव करना शुरू करेगा लेफ्ट साइड पे और मूव करता करता ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा और ये सिस्टम, ये मोशन कंटिन्यू रहेगी और स्टॉप नहीं होगी, बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड दैट द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। मोशन तब ही रुकती है जब किसी सरफेस, दो सरफेसेस के बीच में, दो मूविंग सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन हो। तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो ये मूव करता रहेगा। लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए ये सारा कुछ है कि हमने एज्यूम किया है कि अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस होगी तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम, ये मैस जो है टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा और स्टॉप नहीं करेगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस मोशन? यू कैन रेज योर सर, हैंड। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो? अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो फिर हो सकता है, यस। अगर स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स से ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है तो शायद फिर ये स्प्रिंग उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेकर ना आ सके। लेकिन अभी जो हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं उसमें वेट की कोई डिस्कशन नहीं लेके आ रहे, सिर्फ हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये कोई भी मैस है और ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग की कोई वैल्यू हमने डिस्कस नहीं की, मैस की कोई वैल्यू डिस्कस नहीं की, सिर्फ ये कंसीडर कर रहे हैं एक मैस है, उसको हमने राइट साइड पे ला के डिस्प्लेस कराया है तो वो टू एंड फ्रो मूव करना शुरू हो गया ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स एंड द इनर्शिया। मेन पोजीशन से राइट साइड पे जब हमने इसको फोर्स लगा के इधर ला के छोड़ा है तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन थी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि स्प्रिंग इसको लेफ्ट साइड पे खींचेगा, और डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है राइट साइड पे, क्योंकि मेन पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट राइट साइड पे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट साइड पे है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जब यही ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉइंट बी है, पोजीशन बी है, वहाँ तक गया है
तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है लेफ्ट साइड पे, लेकिन ये स्प्रिंग इसको राइट साइड पे फोर्स लगाएगा, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको राइट साइड पे पुश करेगी, तभी ये वापस आएगा राइट साइड पे। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पे है और force right side पे, both are opposite to each other. Displacement is the shortest distance, and the shortest distance here is the distance from the mean position, this is the mean position, to the extreme position, to any of the extreme position, the right side or the left side. मेन पोजीशन जो O है, ओरिजिन कह लें इसको, O से राइट साइड पे बॉडी जो मूव करके गई है, यहाँ से मेन इसकी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। यस फारूक, व्हाट्स द क्वेश्चन? सर ये सी वाला दोबारा से समझा दें, यानी शुरू से समझा दें, समझ नहीं आया। ये पार्ट बी जो है ये समझ आई है कि जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ला के प्लेस किया है जी सर, उस टाइम पे इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आई है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ले गई ये है, आ गया, स्प्रिंग बी इसको पार्ट आ गया, वापस ले गई। बाकी सी पार्ट। जब ये सेकंड बी पोजीशन पे पहुंचा है जो हमारी फिगर सी है, उस टाइम पे इस स्प्रिंग के अंदर जब आप स्प्रिंग को प्रेस करें, कंप्रेस करें, तो वापस आपको फोर्स लगाता है, आपके हाथ को वापस बाहर की तरफ भेजेगा। इसी तरह इस मैस ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है ड्यू टू इनर्शिया, तो इस टाइम पे इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर होगी, ये अगेन वो रिस्टोरिंग फोर्स ही है, वही फोर्स इसको राइट साइड पे पुश कराएगी। तो जब फोर्स इसको राइट साइड पे पुश करा रही है और ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अब आप केस ले लें कि ये जब इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ जाना शुरू हुआ है, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट कवर होना शुरू हो रहा है राइट साइड पे, और ये स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स स्टोर हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो लेफ्ट साइड पे है। अगेन ये डायरेक्शन दोनों की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। किसी भी टाइम पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट will remain opposite to each other. Any question? Now according to Hooke's law, हमने 9th क्लास में भी हुक्स लॉ पढ़ा था, जिसमें फोर्स और एक्सटेंशन का रिलेशन था, और यहाँ पे भी हुक्स लॉ ही अप्लाई हो रहा है। फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। जितनी ज़्यादा ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। आप पहले इसको इस एग्जांपल से समझ लें कि अगर हमने इस मैस को काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस करा दिया है, हम इसको डिस्प्लेस करा के इस पोजीशन तक ले आए हैं यहाँ तक, और एक है यहाँ पे डिस्प्लेस किया हुआ है, दोनों केसेस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे हमने फोर्स ज़्यादा लगाई है, ज़्यादा फोर्स लगा के यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को लेके आए, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर हुआ है, और रिस्टोरिंग फोर्स भी इस स्प्रिंग के अंदर ज़्यादा स्टोर हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। हुक्स लॉ भी यही कह रहा था, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। हमने यूनिट 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था। The Hooke's law, this force is directly proportional to the change in length x of the spring. इस स्प्रिंग की जो लेंथ में चेंज आ रहा है, वही मतलब है कि इस मैस को जितना हमने डिस्प्लेस किया है, इस मैस को उठा के हम यहाँ तक लेके आए, उतनी ही स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हुई है। इस मैस को उठा के या रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मैस वापस यहाँ तक जो पहुँचा है, उतना ही स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आ रहा है, इसलिए यहाँ पे चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग डिस्कस हुआ है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम अगर हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट हमने वहाँ पे भी पढ़ा था यूनिट 7 में, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एंड वाई देर इज माइनस, माइनस साइन का रीज़न ये है कि ये फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, एंड व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर and they are directly proportional to each other, then we use a negative sign.
where x is the displacement of the mass from its mean position. x है displacement, mass का displacement from its mean position O, और k क्या चीज़ है, and k is the constant called the spring constant. इसको हम कहते हैं spring constant. और इसी फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें तो हम k इससे अलग कर सकते हैं. k will be equal to minus f by x. स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग की स्टिफनेस मेजर करने के लिए. जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा, इसका मतलब है कि स्प्रिंग के अंदर स्टिफनेस है. एक स्प्रिंग है आपका जो आपके बॉल पॉइंट्स के अंदर है, और दूसरा स्प्रिंग है जो मोटर बाइक के शॉक एब्जॉर्बर है. वी आर डिस्कसिंग के दो स्प्रिंग आप लें. एक स्प्रिंग है जो बॉल पॉइंट के अंदर होता है, और दूसरा स्प्रिंग है जो मोटर बाइक के शॉक एब्जॉर्बर में है. क्या एक जैसी फोर्स लगा के दोनों स्प्रिंग्स को हम स्ट्रेच कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर हमें बाइक के स्प्रिंग को स्ट्रेच कराना है तो हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो स्ट्रेच होगा. और जो बॉल पॉइंट का स्प्रिंग है उसके ऊपर हम थोड़ी सी फोर्स भी लगा लेंगे तो वो इजीली स्ट्रेच हो सकते हैं. तो जो बॉल पॉइंट का स्प्रिंग है वो लेस स्टिफ है, उसकी स्टिफनेस कम है. कम फोर्स लगा रहे हैं तो स्टिफनेस भी उसकी कम होगी. यानी कि अगर हमें ज़्यादा एक्सटेंशन मिल रही है कम फोर्स लगाने से ही, वो इसी वजह से मिल रही है क्योंकि उसकी स्टिफनेस कम है. और अगर हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए, उस स्प्रिंग को स्ट्रेच कराने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा है. द वैल्यू ऑफ के इज अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के, यही भी डिस्कस हुआ है कि के की वैल्यू जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा कम होगी. जो स्टिफ स्प्रिंग है उनकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी, एंड सॉफ्ट स्प्रिंग्स हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के. अभी हमने ये बॉडी मूव कर रही है, इमोशन में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है. यस फैजान. सर ये स्टिफनेस का दोबारा बता दें, इसकी समझ नहीं आई. के एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जैसे हमने न्यूटन्स लॉ में कांस्टेंट पढ़ा था, जैसे हमने हुक्स लॉ में जो यंग्स मॉडुलस था उसमें कांस्टेंट पढ़ा था, और भी डिफरेंट कांस्टेंट आपने पढ़े थे. यूनिट 8 में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट वो कांस्टेंट था. वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट वो कांस्टेंट था. वो कहाँ से आ रहे थे? जिस टाइम पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी से. तो ये के जो है ये भी एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट. और इससे हम मेजर करते हैं स्टिफनेस. कोई भी स्प्रिंग कितना स्टिफ है, कितना ज़्यादा स्टिफ है या थोड़ा स्टिफ है. स्टिफनेस ज़्यादा है यानी कि हमें ज़्यादा फोर्स, स्टिफनेस ज़्यादा का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी आएगी. अगर हमने डिस्प्लेसमेंट लेके आनी है तो हमें ये फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी. और अगर किसी स्प्रिंग के अंदर फोर्स लगाने के बावजूद, आप इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई फोर्स की वैल्यू हमने अप्लाई की है, उसके अंदर बहुत थोड़ी सी आई है डिस्प्लेसमेंट, दिस एक्स. इसका मतलब ये है कि उसकी के की वैल्यू, उसकी स्टिफनेस ज़्यादा है. इज इट क्लियर? यस सर. ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है, ये मैस मूव कर रहा है, इसके अंदर मोशन आ रही है. तो जब ये मूव करता हुआ इस एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचता है, यहाँ पे आके रुकता है और वापस मूव करता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन. यही केस यहाँ पे होता है. जब सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, इधर आके ये रुकेगा और फिर ये राइट साइड पे मूव करेगा. तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है.
यहाँ पे इसकी कोई वेलोसिटी थी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी को कुछ हुआ है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, इधर आके रुक गई है। अगर रुक गई है इसका मतलब है वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आके रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उसके अंदर एक्सिलरेशन आता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई मास है और उसके अंदर एक्सिलरेशन है तो हमें न्यूटन लॉ बताता है इट इज़ इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड विल बी इक्वल टू मास टाइम एक्सिलरेशन। एक हमारे पास वैल्यू होगी है फोर्स की ma और सेकंड वैल्यू है kx। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड पे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है।
सॉरी, माइक मेरा म्यूट हुआ था। और यहाँ से लास्ट क्या टॉपिक डिस्कस हुआ है, कौन सी लाइन थी जो आप लोगों को लास्ट आवाज आई है, वो क्या थी? सर आपने डेरिवेशन हमें नहीं समझाई, उससे पहले सारा समझाया। जब से आप व्हाइट बोर्ड पे आए ना, उसके बाद से आवाज नहीं आई है। ओके। हमने ये डिस्कशन स्टार्ट यहाँ से की थी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगा, या जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वालिटी से चेंज करना है तो हम इक्वालिटी लेके आते हैं और एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को अगर इक्वालिटी से रिप्लेस करना है तो इक्वालिटी और साथ एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट हमने यहाँ के से रिप्रेजेंट किया है और उस के को हमने नाम दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट, और इससे हम मेजर करते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। अब मास जो है वो मूव कर रहा है और उसके अंदर एक्सिलरेशन आ रहा है, ये चीज़ भी डिस्कस हो चुकी है। तो जब बॉडी में एक्सिलरेशन हो और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हो तो हम न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी लेफ्ट साइड्स हैं ये सेम है, सो वी कैन इक्वेट बोथ दिस इक्वेशंस। एम ए विल बी इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स एक्स। यहाँ से एक्सिलरेशन अगर अलग करें तो ए विल बी इक्वल टू माइनस के और एम टाइम्स एक्स। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है और किसी भी स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। एक स्प्रिंग है जो इस शेप में है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इसकी कोई वैल्यू है, और दूसरा स्प्रिंग है जो इस शेप में है, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की कोई वैल्यू है। अगर इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 5 है और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 10 है, इन दो स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होगा, लेकिन सिर्फ इस एक स्प्रिंग के लिए ये स्प्रिंग कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। सो आवर स्प्रिंग कांस्टेंट इज द कांस्टेंट वैल्यू। मास जो हमने एक टाइम पे अटैच कर दिया है इस स्प्रिंग के साथ, ऑल्दो ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमने हॉरिजॉन्टल डिस्कस किया है, ये मास भी चेंज नहीं होगा, ये मास भी कांस्टेंट है। एक दफ़ा अगर हमने 10 ग्राम्स का मास लगा दिया है तो वो ये नहीं है कि हमारी मोशन के साथ चेंज होना शुरू हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें जब कांस्टेंट हैं तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करा दिया है, कोई भी एक कांस्टेंट है और आगे वही एक्स लिख दिया है। अब इस इक्वालिटी को हम देखना ये चाहते हैं कि एक्सिलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम यही प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया है, यही स्टेप अगर रिवर्स करें तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी इनको मिला के हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल बनता है। तो ए विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उतना ही ज़्यादा एक्सिलरेशन होगा, लेकिन अगेन इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी। A is directly proportional to negative of displacement from mean position. फोर्स और एक्सिलरेशन में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनकी डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन यहाँ पे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है तो इसका मतलब ये है कि एक्सिलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। Any question up till here? नो सर। नो सर। इसका मतलब ये है कि ये जितनी ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन दूर होगी, ये डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होता जाएगा। अगर यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट था और यहाँ तक आके 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट अगर इंक्रीज़ हुआ है तो हमारा एक्सिलरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। ये पोजीशन है जो मीन पोजीशन है, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है।
वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से जब ये मूव करना शुरू हुआ है इस साइड के ऊपर, तो इधर आके ये रुका है, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। जब रुक गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। इस एक्सट्रीम पोजीशन ए पॉइंट पे भी ज़ीरो होगी। ये जो बी एक्सट्रीम पोजीशन है इसके ऊपर भी वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो का मतलब ये है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इधर आके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था राइट साइड पे, इस पॉइंट पे पहुंच के रुकने के बाद ये लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे आ रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले अगर ये थी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू हो गया, तो वेलोसिटी जब चेंज हो, इफ़ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, तो वहाँ पे एक्सिलरेशन आता है। तो एंडिंग पॉइंट्स के ऊपर जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, यहाँ पर एक्सिलरेशन विल बी मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग इस डायरेक्शन। और यहाँ पे जिधर वेलोसिटी मैक्सिमम है, इधर सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन को भी अगर ले लें, ये आपकी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे भी एक्सिलरेशन विल बी मैक्सिमम।